Exercise 5.1, question number 1 is, for which of these would you use a histogram to show the data? Here you are to tell for which of these you are going to represent it through histogram. The first one is given here, the number of letters for different areas in a postman's bag. If postman is distributing the letters for different areas, so what you will make here? Here we will make bar graph. Here we will make bar graph. Right? Reason because we have given here particular different areas given होंगे कि किस किस जगह पे पहुंच. अब हमें कोई particular things given होती हैं for x axis, then always we make bar graph. Right? We are not given here groups. B part, the height of competitors in an athletes meet. Height में point का difference होता है. अगर आप हाइट का डाटा कलेक्ट करते हो देन डेफिनेटली यू विल मेक द ग्रुप्स हियर. आप ग्रुप्स में डिवाइड करोगे सो यू विल मेक हियर हिस्टोग्राम. सी पार्ट, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. So here 5 particular companies will be mentioned. So that means you will make bar graph here. D part, the number of passengers boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. at a station. So here आपको बताना है सुबह 7 AM से इवनिंग 7 PM तक जितने भी पैसेंजर्स उसमें ट्रेन में गए हैं उनकी काउंटिंग बतानी है. सो फ्रॉम 7 AM to 7 PM यू कांट डिवाइड इट सिंपली लाइक आप उसको बारग्राफ में नहीं कन्वर्ट कर सकते. यू हैव टू मेक योर हिस्टोग्राम. रीजन कि आप यहाँ पर टाइम के आवर्स में उनको डिवाइड करके ग्रुप्स बनाओगे. एंड व्हेन यू विल मेक द ग्रुप्स then you will make histogram, right? Now let's do second question. Second question is, the shoppers who come to a departmental store are marked as men M, women as W, boy as B, or girl as G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. First hour में count किया है like, and इस तरह से किया कि अगर women आई तो W लिख दिया, then next feed again women, then next feed women, then girl, then boy. इस तरह से काउंट करके आपको रॉ डाटा गिवन है. So make a frequency distribution table using telemarks and draw a bar graph to illustrate it. यहाँ पे आपको टेबल बनाना है और उसके लिए बार ग्राफ बनाना है. अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर 4 शॉपर्स गिवन है. पर्टिकुलर M, W, B, G. These are 4 shoppers particular. So definitely you will make the bar graph here. अगर मेंशन नहीं भी हो तो भी आप यहाँ पर बार ग्राफ ही बना सकते हो. सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे. टेबल के लिए आप क्या करोगे? You will write down here shoppers, then you will take telemarks के साथ करना है, then you make telemarks, then frequency. ठीक है, तो आप लिखोगे M, W, B, G. फिर आप M काउंट करोगे, then you will mention frequency and telemarks. Then you will count W कितने टाइम्स है, B कितने टाइम्स है और G कितने टाइम्स है. ठीक है, then you will make the graph for it. Firstly, let's see if you count, then what will be the frequency here? अगर आप काउंट करो तो m कितने टाइम्स है? m is here 15 times, w is here 28 times. When you will count, you will get it. b is here 5 times and g, girls visited 12. ठीक है, number of people are given here. So you can make the telemarks 15, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 like this. 28, 5, 5, 15, 20 and 25, 28. 5 you will take like 1, 2, 3, 4, 5 and 12. 5, 5 and 2. ठीक है,
So like this you can make the frequency distribution table. If telemarks, it's mentioned that make telemarks, use telemarks, तो आप telemarks लोगे, otherwise आप directly भी कर सकते हो. Then you will make the graph here. Graph कैसे बनाएंगे? X axis, Y axis, you will take here on X axis wages, sorry, shoppers, और Y axis पे आप लोगे frequency, number of people. ठीक है. Then you will take like one box. बार ग्राफ कैसे बनाते हैं? अलग अलग बॉक्सेस लेके M, W, B, G. I'm going to share you to do the how to do this. I'm going to share you the picture here. See. So like this will make the bar graph here. Bar graph में आपके पास gap होता है. You can see here. ठीक है. गैप लेंगे, गैप 1 गैप 2 गैप, इक्वल गैप लेना है. आप कितना भी ले सकते हैं. M, W, B, G. वाई एक्सिस पे आपको आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेना है. लाइक आई हैव टेकन हियर 5 गैप, तो यू कैन टेक हियर 10 गैप ऑल्सो, जो आपको इजी लगे. ठीक है, आप उतना गैप ले सकते हो. सो 5 लिया है तो इसका मतलब 2 लाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं. 2 लाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है 1 नंबर को, क्योंकि इसमें 10 होती है. जैसे यू कैन सी हियर देयर आर 10 लाइंस. तो यहाँ पर अगर मैंने 5, अगर आप 10 लेते 10, 20, 30, तो 1 लाइन 1 नंबर को रिप्रेजेंट करती. यहाँ पर 5 लिया है तो इसका मतलब 2 लाइंस जो है वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी. इसके बीच में आपके पास 10 लाइंस है. ठीक है. सो लाइक दिस यू कैन टेक 15. फिर जब आपको 28 लेना होगा, सो यू विल काउंट लाइक 2 को गैप लेकर, ये आपके पास इन बिटवीन आएगा 1 मोर लेकर 28. 2 लाइंस को 1 कंसीडर करोगे. 26, 27 एंड 28. 6th लाइन पे आपके पास 28 आएगा. लाइक दिस 5 एंड 12. ठीक है. आप 10 का गैप लेके भी कर सकते हो. एंड हियर यू विल मेंशन 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 पीपल आई हैव टेकन, और 5 शॉपर्स. 5 हैं 1 यूनिट लेंथ पे, मतलब एक बॉक्स जो होता है वो 1 यूनिट लेंथ का होता है, और वहां पर मैंने 5 पीपल्स लिए हैं. ठीक है. सो आई विल मेंशन हियर that 1 unit length is equal to 5 people. Okay. Any query here? Let's start question number 3. It's the weekly wages of 30 workers in a factory are. Here you have given 30 workers के wages given हैं 830, 835, 890 like this. Using telemarks, make a frequency table with intervals as 800 to 810, 810 to 20 and so on. मतलब आपको 10 के गैप पे और 800 से स्टार्ट कर कर इंटरवल्स लेने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, एंड देन यू आर टू मेक द टेबल. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यहाँ पर आपको. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. आपको गिवन है इंटरवल्स. You can mention here wages also. Wages like this. Then telemarks. And then frequency. ठीक है. तो आप यहाँ पे ग्रुप्स बनाएंगे. Here you will make the groups like 800 to 810, which is given here. 810 to 20 and so on. ठीक है. फिर आप काउंट करोगे 800 से 810 में कितने वर्कर्स हैं. ठीक है, जिनकी वेजेस 800 से 810 में है, लेकिन आप 810 को काउंट नहीं करोगे यहाँ पे. एज यू ऑल नो, हम अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोअर वाले को कंसीडर करते हैं. 810 नेक्स्ट वाले इंटरवल में आएगा. तो 800 से लेकर 810 से कम में जितने भी आपके पास नंबर्स आते हैं, आप यहाँ पर मेंशन करोगे फ्रीक्वेंसी एंड यू विल टेक द टेलीमार्क्स. लाइक 800 से 810 में आ रहे 3 वर्कर्स. Similarly, 810 से 20 में आ रहे 2 workers. Like this, you will make the table and then after that you will make the graph for it. अब जब यहाँ पर groups हैं, so obviously you will make the histogram here.
जब हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, तो हिस्टोग्राम बनता है, राइट? सी हाउ टू मेक द हिस्टोग्राम नाउ. As I explained you yesterday also how to make histogram. Now I am going to share you the picture of the histogram, that how to make it. See, here on x-axis we'll take wages, or you can mention class intervals. On y-axis number of workers are given here, frequency, and here on x-axis you will take the gap like 800, 810, 820, 830 and so on. अब जैसे 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम 800 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक किंक लाइन लेंगे हम, क्योंकि हम वैसे तो हम 10-10 का गैप ले रहे हैं और फर्स्ट गैप हमने 0 to 800 लिया है, इसीलिए हम यहाँ पर किंक लाइन अप्लाई कर देंगे. ठीक है, हियर विल टेक किंक लाइन, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट गैप ज्यादा लिया है. ठीक है, हियर फर्स्ट गैप इज मोर, तो यहाँ पे जिगजैग लाइन सा ले लेंगे, ये शो करने के लिए दैट वी डोंट नीड एनी नंबर फ्रॉम 0 to 800. फिर हम कंटिन्यूटी में नंबर्स लेंगे अप टू 900 जो हमें गिवन है, जहां तक हमें नंबर्स गिवन है. ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास 890 से 900 है. ठीक है, फिर आप वाई एक्सिस पे अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेंगे. जैसे यहाँ पर मैंने लिया 1 to 10, 1 2 3 4, बिकॉज वी हैव मैक्सिमम 9 एंड स्मॉलेस्ट 1, तो हम 1 से 10 ले सकते हैं. देन सिंपली यू विल टेक हियर, आप 800 से 810 में आपको गिवन है 3, तो आपने 3 ले लिया. अब 810 और 820 आगे कंटिन्यूटी में है. ठीक है, ये कंटिन्यूस इंटरवल है, तो आपका इसमें कोई गैप नहीं आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, और कंटिन्यूटीज में ब्लॉक चलते जाएंगे रेक्टेंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास 2 हो गया, फिर 820 to 30 आपके पास 1 हो गया. सो इट विल बी दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम. एंड व्हेन यू हैव गिवन ग्रुप्स, जब आपको कंटिन्यूस इंटरवल्स गिवन है, तो आप क्या बनाते हो, हिस्टोग्राम. दिस इज क्वेश्चन नंबर. हियर थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन था, सी here I'm going to share you. सी थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना था, टेली फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था. फोर्थ क्वेश्चन में ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन के लिए अभी हमने जो हिस्टोग्राम बनाया वो बनाना है, एंड यू आर टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हियर, which group has the maximum number of workers. आपको डाटा को देख के बताना है कि किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सबसे मैक्सिमम नंबर है 9, जो आपके पास आते हैं 830 से 840 के बीच में. सो कौन से ग्रुप में हुए, फ्रॉम 830 to 840. हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर. आप चेक करोगे 850 एंड मोर से. सी 830 and more. Let's see the table here. See. Okay, here you can see 9 सबसे मैक्सिमम नंबर है, और 9 में आपके कौन से ग्रुप में आता है 9, 830 से 840 के बीच में. ठीक है, सो योर आंसर विल बी 830 to 840. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर. 850 से स्टार्ट करोगे यहाँ से, एंड मोर आपको इतने नंबर ऑफ टोटल्स काउंट करने हैं, दिस. ठीक है, 4 5 6 7 एंड 3 10, तो 10 वर्कर्स 850 या 850 से ज्यादा अर्न करते हैं. हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850. लेस देन 850 में आप कहाँ जाएंगे, लेस देन 850 में आप इनको काउंट करेंगे, क्योंकि आप इसमें 850 को तो काउंट करते ही नहीं ऊपर लिमिट को, तो लेस देन 850 में आप 800 से आप 850 यहाँ तक जाओगे, इनको काउंट करोगे नंबर्स को, राइट. So this was question number 4.